آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ آرمی ڈینٹل کالج کی کنونشن تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی شرکت، فارغ التحصیل امیدواروں کو دی مبارکباد۔ گورنر کے کوٹے کے تحت حکومت کی جانب سے نامزد کیے گئے ایم ایل سی امیدواروں عامر علی خان اور پروفیسر کودنڈا رام کی نامزدگی کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ امیدواروں کے ساتھ حکومت کو بھی لگا جھٹکا۔ مجلسی قائدین متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف۔ عطا پور حدود میں ہوئی قتل کی واردات کے ملزمین گرفتار، ڈی سی پی راجندر نگر کی میڈیا کانفرنس۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کلیم اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے سلسلے میں اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی اور اعظم پورہ ڈویژنز کے علاقوں میں آلودہ پانی سربراہ ہونے اور سی سی روڈ کی تعمیر کے سلسلے میں مسائل کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر سلام شاہد اور ایس ایم ابرار، جی ایچ ایم سی اور واٹر ورکس کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مجلسی رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کاموں کو جلد از جلد تکمیل کیا جائے اور مسائل کی یکسوئی کی جائے۔ ضلع محبوب نگر کے کانگریس اقلیتی قائد عبداللہ کوتوال نے چیئرمین تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ نامپلی حج ہاؤس میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں انہوں نے جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کے علاوہ دیگر کارپوریشنز کے صدور نشین بھی موجود تھے۔ ان کے مداحوں نے انہیں اس موقع پر مبارکباد بھی پیش کی۔ اسی طرز پر ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے خسرو پاشا باتفاق آرا منتخب ہوئے۔ حج کمیٹی اراکین کا ایک اجلاس دفتر میں منعقد ہوا، جس میں اتفاق آرا کے ساتھ انہیں سرنشین منتخب کیا گیا۔ اراکین کے علاوہ دیگر سرنشین نے انہیں اس موقع پر مبارکباد پیش کی۔ میں اللہ اور رسول کا اور میرے والدین کا، خاص کر تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا، بٹی وکرمارکا صاحب کا اور اس تلنگانہ کے سارے منسٹرز ایم ایل ایز کا اور کانگریس پارٹی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا۔ میں تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین کے حیثیت سے وہ عہدے کو سنبھالنے کے لیے میں پوری ذمہ داری سے ایمانداری سے اس کو نبھاؤں گا۔ جو حکومت میرے پہ جو عہدہ مجھے دیا ہے، یہ میں ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں، میرے لیے عہدہ نہیں لیکن ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشنز کے جو بھی ایمس آبجیکٹس ہیں، وہ آبجیکٹس فلفل کرنے کے لیے، خاص کر مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے، نوجوانوں کو کام پہ لگانے کے لیے، اس ریاست جو بھی پروگرامز بنائیں گے ضرور وہ پروگرامز امپلیمنٹ کروں گا۔ میں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کا سب کو شکر گزار ہوں، اور کانگریس پارٹی اے سی سی والوں نے ایک ڈیسیژن لے کر ایک لمبے عرصے سے ایک جماعت میں
کام کرنے کی وجہ سے آج مجھے عہدہ حاصل ہوا، اور یہ عہدہ ایک ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھاؤں گا۔ مجھے یہاں پر یعنی عازمین حج کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یہاں بیٹھا ہوں۔ خاص طور پر آج ہمارے حرج العزیز قائد جناب ریونت ریڈی صاحب، وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ فہیم قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے کافی محنت کی اور مجھے اس موقع کا خدمت کرنے کا موقع دیا۔ خاص طور پر آج اتنی گفتگو کروں گا کہ ہمارے جو ممبرس ہیں جو یونانی مسئلہ طور پر مجھے منتخب کیے، قابل ذکر جناب جعفر حسین معراج صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے جو MLA ہیں وہ، اور ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سید عظمت اللہ حسینی صاحب کا، اور تمام دیگر ممبروں کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یونانی مسئلہ مجھے منتخب کیا۔ اور میں سب سے خواہش کیا ہوں عازمین کی بہترین خدمت ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جو حج کمیٹی کے فرائض ہیں، جیسے یہاں پر ان کی صحت کے خیال کے لیے ٹیکہ اندازی کی جاتی ہے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، اور یہاں سے ان کو ایئرپورٹ تک پہنچانا ہے، پھر وہاں سے ان کے لیے فلائٹس کے لیے بہترین انتظام ہو، پھر وہاں پر رباط کا ٹھہرنے کا انتظام ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عنقریب سب بیٹھیں گے اور صحیح انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلیم اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ کی جانب سے آنے والے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر مسلسل گروپ میٹنگز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے سلسلے میں اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت اعظم پورہ ڈویژن میں واقع رشید فنکشن ہال میں گروپ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مجلس رکن اسمبلی کے علاوہ مجلس ڈویژن کارپوریٹر اور سینئر قائدین نے شرکت کی۔ اس گروپ میٹنگ میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ڈویژن کی عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ جماعت سے ناراضگی نہیں ہو سکتی، عوام کو یا تو ورکر سے ناراضگی ہونا، یا کارپوریٹر سے ناراضگی ہونا، یا MLA سے ناراضگی ہونا، جماعت سے عوام کو ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ تو ووٹ عوام کو جماعت میں ڈالنا، جماعت کے لیے ڈالنا ہے، اور جماعت سے ہمارے سے، چاہے میرے سے ہو، کارپوریٹر سے ہو، یا آپ لوگوں سے ہو، اگر سے ہماری کوئی کمی کی طرف سے یا ہماری کوئی خامی کی طرف سے عوام میں کچھ ناراضگی ہے، تو اس کا ذمہ ہم جماعت کو نہیں لگا سکتے، اس کی اصلاح کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ اپن مل کے اپنی اصلاح کریں گے، کہیں بھی کوئی چیز کا تکلیف ہے تو لوگوں کے لیے ہے نا، ہم موجود کر رہے ہیں نا کام، آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے کام؟ یا کسی کو جماعت کی کارکردگی سے یا کام سے یا آپ کے بحیثیت آپ کے رکن اسمبلی کے میرے کام سے کہیں کسی کوئی ورکر کو بھی شکایت ہے، عوام تو دور کی بات ہے، میرے ورکر کو بھی شکایت ہے تو میں سامنے ہوں بول سکتے ہیں بھائی یہ کام ہے، یہ تکلیف ہے ہمارے، ہے ایسا کسی کو؟ بات خاموش بیٹھے تھے، بولنا چاہ رہے تھے، بولو۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ جیسا گزشتہ الیکشن میں ملک پیٹ سے مجلس کو قریب 56,000 ووٹ ملے، 56-57,000 ووٹ ملے، تو ہم کو اور 22,000 ووٹ زیادہ لینے کی کوشش کرنا ہے، جبکہ 32,000 ووٹ کانگریس کی، 18 جلپلی میونسپلٹی وارڈ 3 میں واقع نبیل کالونی میں جاری SNDP کے تحت نالے کے تعمیری اور توسیعی کام جاری ہیں۔ ان کاموں کے معائنے کی غرض سے کلیم مجلس اتحاد المسلمین کے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے متعلقہ میونسپلٹی چیئرمین عبداللہ سعدی کے ہمراہ مذکورہ کالونی کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر حلقہ مہیشورم مائم انچارج احمد سعدی کے علاوہ کونسلر احمد کسادی اور دیگر بھی موجود تھے۔ مذکورہ قائدین نے عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت کے سلسلے میں تفصیلات بھی حاصل کیں۔ الحاج بیرشر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت کے اوپر میں اور جلپلی کے میونسپل کے چیئرمین جناب عبداللہ سعدی صاحب اور
नबील कॉलोनी एरिया के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जनाब अहमद कसाडी साहब और जलपल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अहमद साजी साहब। तकरीबन कई महीनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी चल रही थी हुकूमत से। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तकरीबन 16 करोड़ की लागत से जो नबील कॉलोनी में से जो एक नाले का प्रपोजल दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम मंजूर भी हुआ है। और आज मेरा आने का मकसद एक ही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा आवाम के दरमियान में रहती है। बरस के 12 महीने में मुझे सदर मोहतरम की हिदायत थी कि काम का मायना किया जाए मजलिस के ज़िम्मेदारों के साथ। आज आकर मैंने तफसीली मायना किया SNDP के ऑफिसरों के साथ भी, और काम ज़ोरों में चल रहा है। 2 बिटों में काम चल रहा है। एक तो ये तालाब के तरफ से काम चल रहा है, दूसरी तरफ से नबील कॉलोनी की तरफ से भी यहाँ पर नाले का बॉक्स से ड्रेन का भी काम चल रहा है। और इस काम की ज़ेर निगरानी कायद मुक़न्ना मोहतरम मुक़ाम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में काम चल रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाह रही है कि यहाँ पर जितने कॉलोनीज़ है तकरीबन ये कॉलोनी के लोगों को बारिश के टाइम पे राहत पहुँचे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़ोरों में चल रहा है और इसमें भी कुछ टेक्निकली तरीक़े से 2 बिटों में लेकर काम कर रहे हैं। और वो भी काम करने का मतलब एक ही है कि जल्द से जल्द काम होना बोलकर डबल गैंग लगाकर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आर्मी डेंटल कॉलेज के फारिग तहसील उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करते हुए इस तकरीब से खिताब भी किया। नजरगामी इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद आर्मी कॉलेज फॉर डेंटल साइंस के कन्वेंशन तकरीब से खिताब करते हुए मेरठ तलबा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि आज से उनकी नई जिम्मेदारियों का जो आगाज़ हो रहा है उसमें तलबा अपने और अपने ख़ानदान के नाम के साथ साथ कॉलेज का नाम भी रोशन करें। उन्होंने आर्मी कॉलेज की जानिब से गरीब अफराद में सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और मेरिट कामयाब होने वाले तलबा में मेडिसिन सर्टिफिकेट और नक़द रकम तकसीम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। जिन तलबा ने मेरिट में कामयाबी हासिल की उसमें डॉक्टर आयशा, डॉक्टर मुदस्सिर मोइनुद्दीन, डॉक्टर विश्वराज शामिल हैं। अपराजिता मैती। I'm happy to be here at your convocation today. I congratulate each student here at Army College of Dental Sciences on your remarkable achievement. Your hard work and dedication has brought you here, and I am delighted to be a part of your celebrations. As you start a new journey from today, enjoy your success, but always keep your responsibility in your mind. Your actions will define not only your name and your families, but importantly of your college. ACDS brings pride to our army and our nation as it serves the children of our brave soldiers. Today I see bright students whose faces are shining with joy and pride on the faces of your parents. I would lastly like to congratulate ACDS for making special efforts to provide oral health care to the poor through their outreach and awareness programs. My best wishes to all of you for your future. Keep spreading smiles. Jai Hind.
रियासती हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए गवर्नर के कोटे के तहत एमएलसी की नशिस्तों पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां और सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम के नामों को गवर्नर ने जो मंजूरी दी थी इसे मनसूख करने के साथ साथ साबिक बीआरएस हुकूमत की सिफारिश करदा नामों डॉक्टर श्रवण कुमार और सत्य नारायण के नामों को भी मनसूख करने की हिदायत दी है। गवर्नर के कोटे के तहत नामजद किए जाने वाले नामों के सिलसिले में दोबारा एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बस भवन में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि आरटीसी मुलाजमीन ने हुकूमत की शुरू करदा महालक्ष्मी स्कीम की कामयाबी और मेडाराम यात्रा में जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश है। उन्होंने मुलाजमीन को तयक़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में हुकूमत मुलाजमीन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। MD RTC VC सजनार ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि RTC मुलाजमीन ने मेडाराम यात्रा के मौके पर कई मसाइल बिलखुसूस ट्रैफिक मसला दरपेश होने के बावजूद भी बेहतर खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर मेडाराम यात्रा के दौरान बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले RTC मुलाजमीन को अवार्ड से भी नवाजा गया। ఎప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా సకాలంలో జరుపుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి 2013 కానీ దాని తదుపరి మళ్ళీ ఎంపీ గారు మేము మాట్లాడుకునే సందర్భంలో PRCకి సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఆర్టీసీ ఇవ్వాలనే నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో దాదాపు 34 కళ రామగుండం రోడ్డుకు అంటే కరీంనగర్ కావచ్చు, సిద్దిపేట కావచ్చు, రామగుండం మంచిర్యాల పోయేటువంటి వాళ్ళకు కంటోన్మెంట్ ఏరియా కూడా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ శంకుస్థాపన చేయడానికి పోతాం. నేను జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిలో పోతాను కాబట్టి ఈ అంశాన్ని తప్పకుండా మాట్లాడదాం. మన వాస్తవంగా నాకేం పని లేకుండా కేరళకు సీఎం గారు పోతుంటే నేను వాళ్ళతో ప్రత్యేక విమానంలో పోయినా మీటింగ్ ఉంటే, కానీ ఈ అంశం మాట్లాడడానికి అవకాశం రాలేదు. 2 అంశాలను మాట్లాడదామని నేను దాని మీద క్లియర్ నోట్ తెప్పించుకున్నాను. దాన్ని మాట్లాడడం వీలు కాలేదు. వివిధ రకాల బిజీ కార్యక్రమాల వల్ల భారత సైడ్ నిన్న సైడ్ కార్యక్రమాలు ఉండడం వల్ల గమనిస్తే ఈరోజు ఇద్దరం కలిసి చాలాసేపు కార్యక్రమాలు ఉండేది కాబట్టి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటి सीनियर BRS कायद और रुकन असम्बली हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से महबूब नगर में मुनक़िदा जलसे आम में BRS पर की जाने वाली तनक़ीद पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम 60 साल से ज़ायद अरसे तक इक़्तिदार पर फायज़ रहे और महबूब नगर के किसानों की 1 एकड़ अराज़ी को भी पानी सैराब नहीं किया, जबकि BRS हुकूमत ने अपने 10 साल दौर इक़्तिदार में 4 आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए मुत्तहिदा महबूब नगर ज़िले की 6 लाख एकड़ अराज़ी को सैराब किया। इसके अलावा महबूब नगर में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, 500 बिस्तर वाला असली दवाखाना कायम किया, जबकि कांग्रेस दौर में महबूब नगर के मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए उस्मानिया दवाखाना जाया करते थे। కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు కొబ్బరికాయ కొట్టారు. 1984లో కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు కొబ్బరికాయ కొట్టి 2014 దాకా మీరే అధికారంలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీలు. 30 ఏళ్లలో కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టుకు మీరు అందించిన నీళ్లు ఎంత అంటే 13,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చారు. కానీ అదే కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టులో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి 2,600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 3,07,000 ఎకరాలకు ఇలా కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు కింద మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నీళ్లు ఇచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ది, బీఆర్ఎస్ పార్టీది. 30 ఏళ్లలో మీరు 13,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తే మా హయాంలో 3,07,000 ఎకరాలకు కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు కింద నీళ్లు అందించాం. మేము పోయి రాత్రింబవళ్లు పనిచేయించాం. ప్రాజెక్టుల దగ్గరనే నిద్రపోయినాం. ప్రాజెక్టుల వెంటబడి అధికారుల వెంటబడి పనులు చేయించి ఇలా 3,07,000 ఎకరాలకు కల్వకుర్తి కింద నీళ్లు అందించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నెట్టంపాడు ప్రాజెక్టులో కాంగ్రెస్ హయాంలో మీరు 10 ఏళ్ల అధికారంలో ఉండి 2,300 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 540 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి
1,40,000 ఎకరాలకు మేము నీళ్లు అందించాం. అదేవిధంగా భీమా ప్రాజెక్ట్, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో భీమా ప్రాజెక్ట్ కింద కేవలం 12,000 ఎకరాలకు మీరు నీళ్లు అందిస్తే 646 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 1,60,000 ఎకరాలకు మేము నీళ్లు అందించాం. కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కింద లిఫ్ట్ పనులు మీరు పెండింగ్లో పెట్టి పూర్తి చేయకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 157 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కోయిల్ సాగర్ కింద 32,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాం. ఈ 4 ప్రాజెక్టుల కింద బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము 6.5 లక్షల ఎకరాల సాగులోకి తెచ్చాం. ఈ 4 ప్రాజెక్టులు మీరు పెండింగ్లో పెట్టి ప్రాజెక్టుల పేరే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మారిపోయి ప్రజలను నిరాశ నిస్పృహలకు లోన్ చేసి వలసలకు కారణమయ్యి రైతు ఆత్మహత్యలకు కారణమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. सीनियर कांग्रेस कायद व महबूब नगर पार्लिमानी हलके के कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद्र ने महबूब नगर पालमोर में 15 रोज़ा पदयात्रा का आगाज़ करते हुए आवाम से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो महबूब नगर पार्लिमानी हलके से उनका मुकाबला करें। वंशी चंद्र ने बताया कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साल दौर इक़्तिदार में पालमोर आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी काम पाए तकमील नहीं किए और ना ही किसानों के अराज़ियात को सैराब करने के इक़दाम किए। मिडीगड्ढा बैरेज का मुआयना करने के लिए एनएसडीए का वफद पहुंच चुका है। बताया गया कि मिडीगड्ढा लक्ष्मी बैरेज का नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का वफद मुआयना कर रहा है और इस सिलसिले में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की तरफ से तेलंगाना के लिए मरणबर्द के दावे और हवाले को मुज़ाहिका खैस करार दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर को धरना चौक पर धरना देते हुए हैदराबाद के लिए मरकज़ से फंड्स लाने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में हैदराबाद में एक भी मुस्तकिल ढांचा तैयार नहीं किया। ఏ అవసరం వచ్చినా అండగా నిలబడి అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు ముందుకెళ్తున్నాం. మొన్న ఆయన కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నారు, మా కృషి పాలించింది రేవంత్ రెడ్డివి సాధించిండని. తెచ్చింది నేనైతే నీదేందా మధ్యలో అంటే వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు మేము చేయలేకపోయినాం, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది చేసిందని అభినందిస్తే బాగుంటుంది. మా పోరాటం ఫలించిందంటే ఏం పోరాటం అయినా పోరాటం? ట్విట్టర్లలో దిక్కుమాలిన పోస్టులు పెట్టుడే నీ పోరాటమా? ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు పెండింగ్ ఉన్న కేంద్రం నుంచి ఇంకా కొన్ని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి కోసం మెట్రోకు నిధులు రాలే. మిత్రుడు కేటీఆర్కు నేను సూచన చేస్తున్నా, హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి కోసం ధర్నా చౌక్లో ఇంద్ర పార్క్ దగ్గర మీరు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేయండి, మేము సంపూర్ణంగా సహకరిస్తాం. గతంలో కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఒక మాట, కేసీఆర్ జచ్చుడో తెలంగాణ వచ్చుడో అని. ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు కూడా ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకొని కేటీఆర్ జచ్చుడో నగరానికి నిధులు వచ్చుడో రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి తేలే విధంగా కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా ఆయన దీక్ష కూర్చుంటే మా కార్యకర్తలే కంచేసి కాపాడుతుంది. దానికి మా మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారిని పూర్తి బాధ్యత. ఎందుకంటే పోలీసులు గిన మళ్ళీ ఆయనను అర్ధరాత్రి పూట దవాఖానకు తరలించకుండా మా హనుమంతన్నకు ఆ బాధ్యత అప్పచెప్తా. వారు చూసుకుంటారు, నిధులు సాధించుడో లేకపోతే వాళ్ళ స్లోగన్ నిజమవుడో ఏదో ఒకటి జరిగే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ ముఖ్యంగా అధికారుల కింద కూడా వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. నేను ఒక్క మాట గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది అనంటే ఆనాడు యూపీఏ 1 యూపీఏ 2లో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు, ఐటీ కంపెనీలను, ఫార్మా కంపెనీలను
महबूब नगर मजालिस मुकामी के तहत होने वाले कौंसिल इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी ने एन नवीन कुमार रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीआरएस पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला KCR ने महबूब नगर ज़िले के पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत के बाद एन नवीन कुमार रेड्डी के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ख़वातीन के मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से अब तक 24,04,000 ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा किया है। RTC की तरफ से इस सिलसिले में आदाद व शुमार जारी किए गए हैं। शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा वर्कशॉप तारुफ संस्कृत ज़बान बराए उर्दू मीडियम तलबा का आगाज़ हुआ। इफ्तिताही इजलास की सदारत प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार मानू ने की, जबकि मेहमानान ख़ुसी की हैसियत से प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद OSD 2 और प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन OSD 1 ने शिरकत की और खिताब भी किया। इजलास का आगाज़ अमीरुल हसन की ख़रात कलाम पाक से हुआ, जबकि डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी सदर शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम करते हुए इस वर्कशॉप को मुनक़िद करने के अग़राज़ और मक़ासिद बयान किए। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र ने संस्कृत ज़बान की अहमियत और इसके मजहबी सरमाए पर अपने ख़यालात का इजहार किया, जबकि सदर इजलास प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद ने शोबे को मुबारकबाद दी कि हुकूमत की इस काविश को अमली जामा पहना रहा है, जिसके तईं संस्कृत ज़बान को ज़िंदा रखने और इसकी तरवीज के लिए इक़दामात पर ज़ोर दिया जा रहा है। अब्दुल ख़बी आदिल ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि इस मौके पर शोबे के मुतहर्रिक रुकन डॉक्टर फ़हीमुद्दीन अहमद कन्वीनर के अलावा रिसोर्स पर्सन डॉक्टर शेख अब्दुल गनी भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़बान के अहम निकात पेश किए और मुख्तलिफ सेशंस के दौरान वो वर्कशॉप से खिताब भी करेंगे। डॉक्टर कहकशां लतीफ़ असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तर्जुमा ने हदिया तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। के काट ने सादुन दरासरी, तो इस तरह हमें ट्रांसलेशंस नजर आते हैं संस्कृत के हिंदी में। हमने तो इसके अलावा उर्दू में भी बहुत से हैं। आपको भतरी हरी का नाम भी नजर आएगा, भतरी हरी का असर गालिब पे भी इकबाल पर नजर आएगा। और जो जैसा कि काज़मी साहब ने कहा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़बान पर संस्कृत के असरात बखूबी नज़र आते हैं। मैं वक्त नहीं लूँगी, मौका मिला तो बात करूँगी। मैं फ़र्दन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी हौसला अफजाई हमेशा करते रहें। तमाम स्टूडेंट्स का भी जो दीगर शोबा से तशरीफ लाए हैं उनका भी हो सकती है। वो शख्स जिसको अपनी मादरी ज़बान पर उबूर हासिल है, वो दुनिया की दीगर ज़बानों को बहुत आसानी के साथ सीख सकता है। वो मादरी ज़बान से जो मजबूत लगाव है, वो लगाव दीगर ज़बानों को सीखने के लिए बहुत आसान राह फराहम कर देता है। और तीसरी और अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ एक लफ्ज़ अक़लियत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर मैडम भी थी अभी इंग्लिश के इन सभी ज़बानों का या इन सभी ज़बानों के लिए, सभी तालिब इल्मों के लिए ये वर्कशॉप बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ है, यकीनन इंग्लिश से गहरा ताल्लुक़ है। पर्शियन के लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ, उनका भी गहरा ताल्लुक़ है। तराजम के हवाले से अगर देखी जाए तो बहुत सारी बहुत बड़े वर्ड्स जो हैं वो पर्शियन में ट्रांसलेट हुए हैं, ईरान में ट्रांसलेट हुए हैं, हिंदुस्तान में ट्रांसलेट हुए हैं, अकबर के ज़माने में हुआ रामायण। एक पूरी की पूरी जो है उसकी दास्तान मौजूद है कि स्कॉलर्स ने कैसे उस काम को शुरू किया। यानी वो फारसी के स्कॉलर्स उस वक्त जिनका ताल्लुक़ कोर्ट से होता था, यानी एक तरह से वो वज़ीर के बाद उनकी हैसियत होती थी, वो इस कदर करीब होते थे बादशाहों से, उन लोगों को एक बड़े नेशनल लेवल पे, यानी उस वक्त के लिए कह रहा हूँ, नेशनल लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट पे उनको शामिल किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग फारसी के स्कॉलर हुआ करते थे,
अरबिक के स्कॉलर हुआ करते थे, संस्कृत उनको उस तरीके से नहीं आती। ऐसा नहीं है कुछ जाहिर। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। इस सिलसिले में डीसीपी राजनगर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। नाज़रीन, इस खबर के साथ जराइम से जुड़ी दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। साइबराबाद पुलिस ने 5 मार्च को अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में हुए 20 साला फ़हीम साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीन नगर के कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी राजेंद्र नगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फ़हीम और मुलजिम नंबर 1 यासीन साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी का शब बारात की रात को मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। तब मोहल्ले के बुजुर्गों ने मामले को रफा दफा करवा दिया था, लेकिन यासीन ने फ़हीम को रास्ते से हटाने का मंसूबा तैयार किया और इसमें काला पत्थर के साकिन उबैद कुरैशी, चंद्रानुटे के साकिन अब्दुल मिनहाज और चारमीनार के साकिनान ख़य्यूम और फ़हीम को भी अपने साथ मिला लिया। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यासीन ने लड़की के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और मकतूल फ़हीम से चैटिंग करने लगा। फ़हीम को कोहे इमाम पहाड़ बुलाया गया। फर्जी लड़की के बुलवाने पर फ़हीम मुकाम वाक़े पर पहुंचा और फिर वहां पर यासीन और उसके साथियों ने मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए उसका गला काट दिया और फिर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात की और तमाम मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया। मुलज़िमीन के कब्ज़े से आला जुर्म 5 मोबाइल फ़ोन्स और 2 बाइक्स भी ज़ब्त किए गए। ये राजेंद्र नगर जोन में 5 तारीख को एक मर्डर हुई थी 12 इमाम दरगाह के पास। वहाँ एक लड़का 20 इयर्स बॉय को मर्डर करा, बॉडी है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है बोल के पहले पुलिस को फ़ोन आई थी। हम पुलिस पहुँच के 1 आवर में इनका डिसीज्ड आइडेंटिफाई निकला जब फ़हीम बोल के बिस्मिल्लाह कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स का। आफ्टर दैट ये SOT राजेंद्र नगर एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू दैट केस। एक वही दिन आइडेंटिफाई कर सक पाए वो लोगों को और आज वो लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा। ये मर गए सो फ़हीम को और वही महल्ला में रहता है यासीन बोल के। वो यासीन और फ़हीम को जगने के रात के नाइट में थोड़ा छोटा गड़बड़ हुआ। बाद में वो एल्डर्स हो के रिजॉल्व करना था, लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक के ऊपर एक वो निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहाँ तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासीन उनका दोस्तान 4 लोगों को मिला के काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2, ये 4 लोगों को बुला के उनको समझाया था इनको उड़ा देना नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोगों को टेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे और एक फेक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट लड़की का नाम पे एक अकाउंट खोल के उनके चैटिंग करके वो बच्चा को जब डिसीज्ड फ़हीम को ल्यूर करके यहाँ बुलाया। वो यही या फ़हीम भी मान लिया कि एक लड़की मेरे को बुला रही बोल के वो दरगाह के पास आया। जब वहाँ ये 5 लोगों मिलके उनको चाकू से मार दिए। आज वो लोगों पूरा लोगों अरेस्ट हुआ। एक केस पे 5 पीपल आर अरेस्टेड और 2 बाइक्स, एक नाइफ और 5 सेलफोन्स भी सीज़ करा। आज कोर्ट में पेश करा जा रहा। अब जवान लोगों अब समझ लेना कि एक सोशल मीडिया अकाउंट पे जो फ़ोटो रहता नहीं तो एक नाम रहता, एक एड्रेस रहता, ये फेक भी हो सकती। अब आज तक हम लोगों छोटा चीटिंग केसेस हम लोगों देखे थे। अब इसमें ये सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना के उनको बुला के यहाँ मर्डर भी कर दिया। इसीलिए पूरा यूथ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना में हर प्रिकॉशन लेने का ज़रूरी है। थैंक यू। डोंडीगल में बीआरएस पार्टी के एमएलए इमराज शेखर की मिल्कियत वाले IARE कॉलेज के पास इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ज़राए के मुताबिक महकमे आबपाशी की तरफ से अराजी का सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला कि कॉलेज का प्लेग्राउंड और बाज़ इमारतें महकमे आबपाशी की अराजी पर तामीर की गई हैं। सर्वे के बाद कलेक्टर की तरफ से इंहदामी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई अंजाम दी गई और इस मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया।
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हिमायत सागर के पास वाटर टैंकर ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 3 साला लड़की सुमेरा फातिमा बरसरे मौका जहां बाग हो गई। कार में सवार ख़ानदान मोइनाबाद से हैदराबाद आ रहा था कि ये हादसा पेश आया। कार में सवार दीगर 4 अफराद भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट के पास लापरवाह ड्राइविंग का वाक़या पेश आया। एयरपोर्ट से आ रही कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 5 लोग ज़ख्मी हो गए और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से मसरूफ़ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में भी हवाला रकम मुंतकिल करने के सिलसिले में सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई की गई जिसके दौरान 50 लाख रुपए जब्त किए गए। साइबराबाद एसओटी माधोपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की हवाला रकम जब्त कर ली। गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब मुसद्दक़ा इत्तला पर साइबराबाद एसओटी टीम ने माधोपुर पुलिस टीम के साथ मिलकर रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में मुंतकिल की जा रही 50 लाख रुपए की हवाला रकम जब्त कर ली। रायदुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। यूपीएल की जानिब से दोहा क़तर में खिलाए जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 8 मार्च जुमा को मुकर्रर है, जिसमें केपीके किंग, एचएमजी यूनाइटेड, नजीब डिफेंडर्स और दक्कन स्ट्राइकर्स एक दूसरे के मुकाबिल होंगे। यूपीएल फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी के मुताबिक ताहाल टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन के तौर पर हसन परवेज़ का नाम सुर्खियों में है, जबकि रिजनी जीजी दूसरे नंबर पर हैं। इसी तर्ज पर टॉप बॉलर्स में समीउल्लाह का नाम सबसे आगे है, जो 12 विकेट ले चुके हैं, और दूसरे नंबर पर रिफान शाह का नाम चल रहा है, जिन्होंने 10 विकेट हासिल किए हैं। सिराज अंसारी के अलावा प्रेसिडेंट मीर सुहैल, स्पॉन्सर अमजद खां और तमाम यूपीएल बोर्ड मेंबर्स ने मज़कूरा टीमों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाक़ों में फुटपाथ पर किए जा रहे कब्ज़ों को बर्खास्त करने के सिलसिले में मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत टोली चौकी रोड, वृंदावन कॉलोनी वाक़े गेट नंबर 1 में मज़कूरा कार्रवाई की गई, जहां फुटपाथ पर लगाए गए मुख्तलिफ बैरिकेड्स को मुनहदिम किया गया। इलाहाबादी खुद फुटपाथ को मुनहदिम करते हुए मलबा वहीं छोड़कर डीआरएफ की टीम और जीएचएमसी टीम वहां से रवाना हो गई। मकामी अवाम ने इस कार्रवाई पर अपनी बरहमी का इजहार किया है।
हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट पुरानी हवेली की जानिब से इस रमज़ानुल मुबारक में मुनफरिद पेशकश की जा रही है। मैनेजिंग ट्रस्टी शौकत मिर्ज़ा ने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट वाक़े पुरानी हवेली का क़याम 2013 में अमल में आया, जिसके मुख्तलिफ काज हैं। शौकत मिर्ज़ा ने बताया कि इस साल ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने की गरज से हेल्पिंग हैंड किचन तैयार किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स बनाए जा रहे हैं और इन आइटम्स को रमज़ान के लिए भी पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हेल्पिंग हैंड्स के ज़रिए रोज़ेदार मज़कूरा आइटम्स ऑर्डर दे सकते हैं। उन्होंने ट्रस्ट की दीगर सरगर्मियों पर भी तफसीली रोशनी डाली। लेकिन अभी जो चीज़ें आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत सी औरतें हमारे साथ जमा हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान करते हैं और ये हेल्पिंग हैंड्स के किचन में सारा सामान तैयार होता है। आपको बता दें कि तकरीबन पिछले 2.5 साल से रोज़ाना हेल्पिंग हैंड्स के किचन में 100 से 150 आदमी का खाना बनता है, जो गरीब और मुस्तहिक़ लोगों में तकसीम किया जाता है। ये काम करने वाली हमारी ख़ुद वीडियोज़ होती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे से जुड़ी हुई औरतों ने तैयार किया है ताकि घरेलू स्टाइल में साफ़ सुथरे माहौल में कम से कम कीमत पर जितनी अच्छी ग़िज़ा हम आपको फ़राहम कर सकते वो हम आपको दें। तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हेल्पिंग हैंड्स के किचन में तैयार किए गए हैं। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो ये चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, रोटी सब्ज़ी, ये दही बड़े हैं जो हो सकता है कि रमज़ान में लोग इस्तेमाल करें। उसमें दोनों कैटेगरीज हैं, बेसन के बने हुए और माश के बने हुए। स्नैक के तौर पर ब्रेड पकोड़ा है, और टिक्की है जो खजूरी भी कहलाती है, फलाफल पाव है, मटन शामी कबाब है और मेरे उस तरफ अंडा कटलेट है। मीठों में इस वक्त 2 सैंपल्स आपके सामने हैं, एक ज़ाफ़रानी खीर है और एक गाजर का हलवा है। वो आप देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम चीज़ों पर हमारी कीमत के टैक्स लगे हैं और कोशिश यही है कि जो भी इसमें मुनाफा होगा, कमाई होगी, इसमें हेल्पिंग हैंड्स का कोई शेयर नहीं है। मुकम्मल तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं और जो आमदनी होगी उन्हीं के हिस्से में जाएगी। हेल्पिंग हैंड्स सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनकी कोशिशें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। आर्मी डेंटल कॉलेज की कन्वेंशन तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत, फारिगुल तहसील उम्मीदवारों को दी मुबारकबाद। गवर्नर के कोटे के तहत हुकूमत की जानिब से नामजद किए गए MLC उम्मीदवारों आमिर अली खां और प्रोफेसर कोदंडराम की नामजदगी को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। उम्मीदवारों के साथ हुकूमत को भी लगा झटका। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। अत्तापुर हदूद में हुई कत्ल की वारदात के मुलज़िमीन गिरफ्तार, DCP राजेंद्र नगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।